تک یہاں پر ہیں، اور اس سے پہلے جو ہماری ملاقاتیں بند ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ سیاسی ملاقاتیں بند ہیں، لیکن یہ 2 دن ہماری تمام سٹرگل جو ہمارے لیڈر کے ساتھ جناب عمران خان کے ساتھ، جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا وہ تاحیات چیئرمین ہے، ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کے صحت کے حوالے سے جو انہوں نے غفلت کی ہے، انہوں نے طبی دہشت گردی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر، اس کے ذاتی ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر ان کو ایک اسپتال لایا گیا، اور وہاں پر ایسے اسپتال جہاں پر اس کے مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور وہاں پر علاج ہوتا ہے، پھر 5 دن قوم سے یہ بات چھپائی جاتی ہے، ان کی فیملی سے بات چھپائی جاتی ہے، ان کے ذاتی ڈاکٹرز وکلاء سے وہ بات چھپائی جاتی ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کا اپنا وزیر ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو ان کی باتوں کا تمام یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، نہ عوام ان پر اعتماد کرتی ہے، نہ ہم اعتماد کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کل سے یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے ملیں، وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، وہ صرف ان سے ملیں گے، وہ قوم کو، پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کو کنسرن ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے تشویش کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے غمزدہ ہے، اور اس معاملے پر جو قوم سے چھپائی گئی تھی اس پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ قوم کو وہ ڈاکٹرز بتا دیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے، اس حالت میں ان کو جیل لے کے گئے، اس سے پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس وجہ سے آپریشن کی ضرورت تھی، اور ابھی جو ہے ان کی یہ حالت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ نظام تقریباً مفلوج ہو چکا ہے، اتنا بحث ہو چکا ہے کہ نہ کسی انسان کی قدر کرتا ہے، نہ کسی جمہوری قوت کی قدر کرتا ہے، نہ جو ہماری جمہوری روایات ہیں ان کی قدر کرتا ہے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مسلسل 2 راتوں سے وہ روڈ پر بٹھائے رکھا ہے، 2 دنوں سے وہ کبھی ایک جگہ پر روڈ پر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ پر۔ ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کو جو ہے پاکستانی ایئر فورس کا جہاز دے کر پوری دنیا گھمایا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں فیڈریشن کے ساتھ بھی زیادتی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ نفرتوں کو بڑھا رہا ہے، یہ نفرتوں کو پھیلا رہا ہے، اور حالات کو زبردستی اس طرف لے کے جا رہا ہے جس سے پھر واپسی ناممکن ہوگی، پھر نقصان سب کا ہوگا، کیونکہ عوام نے جب بھی فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر نقصان سب کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، اگر فرض کریں ہم بات کرتے ہیں، ہم جدوجہد کرتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے مکالمے کرتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد رکھتے ہیں، تو اس میں آپ رہ کر ہماری مدد کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ پھر اگر سارے دروازے بند کیے جائیں اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے تو یہی آئین اور قانون ہمیں پھر احتجاج کا حق دیتا ہے، پرامن احتجاج کا، اور وہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس حق کو ہم پھر استعمال بھی کریں گے۔ ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی ملاقات کے لیے یس اور نو میں جواب آئے گا، تو اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل ہم دیں گے، تو وہ نو ہے، ڈاکٹر سے نہیں ملوایا جا رہا عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو۔ تو ابھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس سیکرٹری جنرل صاحب بلا چکے ہیں، ابھی ہم جائیں گے پولیٹیکل کمیٹی میں، ہمارے جی یہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ سہیل افریدی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ علامہ ناصر عباس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج رجسٹرار سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے حوالے سے عمران خان سے، مگر تاحال جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ظاہر کی گئی، کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، اور اس وقت علامہ ناصر عباس، شفیع جان
اور سلمان صفدر اور اس کے ساتھ سہیل آفریدی، شوکت بسرا اور تمام لیڈران جو ہیں وہ اس وقت مشاورت کر رہے ہیں دھرنے کے حوالے سے کہ آیا دھرنا یہاں پہ جاری رکھنا ہے یا اٹھنا ہے اور کب تک اٹھنا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ اس وقت مشاورت جاری ہے۔ ملاقات کر کے آئے چیف جسٹس سے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ملاقات اس وقت کر آئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ مشاورت کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ کیا لاہ عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیا پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ یہاں پر میڈیا ٹاک کریں گے اور اگلے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر سے جو ہے وہ یہ براہ راست ہے اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو کا دیوار ہے اس سے جو ہے یہ سہیل آفریدی اس کے ساتھ جو ہے اس وقت براجمان ہیں سپریم کورٹ کے باہر۔ عمران خان يوصل يا وزير عمران خان يوصل يا وزير حقيقي وزير عمران خان پاکستان رہا کرو 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 عمران تیرے جان نثار بے شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار عمران خان آپ اکیلے نہیں ہے، آپ کے ساتھ پوری عوام ہے۔ عمران تیرے جان نثار بے شمار سب کا جگری سب کا یار، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، تم کیسے نہ دو گے آزادی، تم کیسے نہ دو گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، مائیں بھی مانگے آزادی، مائیں بھی مانگے آزادی۔ صاحب اور ان نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب یہ بھی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہمارا جو 8 فروری کا احتجاج ہے وہ انٹیکٹ ہے اور اس کی تیاری بھی جو ہیں پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا پولیٹیکل کمیٹی میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس چیز سے جو 2 دن سے ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور شدید غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو۔ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو سی ایم صاحب جس رپورٹ وزیر اعظم سب کا وزیر اعظم عمران خان یوصل یا وزیر عمران خان یوصل یا وزیر حقیقی وزیر عمران خان پاکستان رہا کرو 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 عمران تیرے جان نثار بے شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار عمران خان آپ اکیلے نہیں ہے، آپ کے ساتھ پوری عوام ہے۔ عمران تیرے جان نثار بے شمار سب کا جگری سب کا یار، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، تم کیسے نہ دو گے آزادی، تم کیسے نہ دو گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، مائیں بھی مانگے آزادی، مائیں بھی مانگے آزادی۔ آپ کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں، ہر انسان کے جو پاکستان میں بستا ہے، پاکستان کے آئین میں اس کے حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو پریکٹس کرنا اس کا حق ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اور ان کو ختم کرنا یہ ظلم ہے، سارا ظلم ہے۔ ہم پر جو اس وقت نظام حاکم ہے وہ ظالم نظام ہے، ظالم ہمیشہ نائل ہوتا ہے،
खुदावन मुताल की तरफ से इसको इजाज़त नहीं है पर हुकूमत करे। पाकिस्तान का आइन में लिखा है हकमत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। ये इक़्तिदार अमानत है इनके पास। क्या ये अमानत जिन्होंने कब्ज़ा कर ली है, इनको हक है कि इस तरह के लोग हम पर हुकूमत करें? खुदा राज़ी है हमारे पर ये मुसल्लत हों? ये गासिब हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हर लिहाज से गैर इंसानी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है और ज़ालिमाना है। लिहाजा खान साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा आवाम और दुनिया में लोग, फ़कत पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में हर बाज़मीर और हुर्रियत पसंद इंसान जो चाहता है कि ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम आए और एशिया तरक्की करे, वो खान साहब के बारे में उसके कंसर्न्स हैं, वो उनसे मोहब्बत करता है। लिहाजा खान साहब को जेल में बंद रखना, उनके हुकूक पामाल करना और इस तरह के इंतहाई डर्टी प्रैक्टिसेस करना, जिनकी कोई भी बाशरफ इंसान जिसके अंदर वक़ार हो, विजदान हो, इंसानियत हो, वो ये हरकत नहीं कर सकता। इसलिए काबिल मज़म्मत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी आप यहाँ बैठे रहें, ये दुनिया देख रही है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने वाला है ही नहीं है, ये इंसाफ देने वाला नहीं रहा है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद, आर्डर्स के बावजूद मंगल को फैमिली बैठती है, जुमरात को चीफ साहब आते हैं, CM साहब आते हैं, लेकिन मुलाकात करने नहीं देते, हक पर डाका डालते हैं दिन दिहाड़े। ये वो लोग हैं जो दिन दिहाड़े बेशर्मी करते हैं, जुल्म करते हैं और उनको शर्म भी नहीं आता है। इसलिए मैं एक दुआ करता रहता हूँ, खुदा न करे किसी के मुखालिफ, उससे दुश्मनी करने वाले लोग कमीने और हकीर लोग हों। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है इंसान का। बाशरफ, बहादुर, शुजा मुखालिफ हो ना, तो मुखालफत का मज़ा भी आता है। इस वक्त हमारा पाकिस्तान आप देख लें, KPK को देख लें, पाकिस्तान पूरे को देख ले, बलूचिस्तान को देख ले, पंजाब को देख ले, बच्चे औरतें जेलों में डाले हुए इन्होंने। हम सब की जिम्मेदारी है, आप कभी पीकार के साथ गला घोटा गए, हम सब की जिम्मेदारी है इस फस्तायत, जुल्म, जबर, इस्तिबदाद के खिलाफ सदा बुलंद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवामी जदोजहद के ज़रिए ही हम निज़ाम को उठाएंगे और ये ठहर जाएगा, इंशाअल्लाह नहीं चल सकेगा, ये अपने बोझ तले भी दब रहा है। तो आज जो भी यहाँ प्रैक्टिस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ादी के लिए है, हुर्रियत के लिए है, हुकूक के लिए है और इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में रखना पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान फेडरेशन से दुश्मनी है, पाकिस्तान पर हमला है। इसलिए इमरान खान ही वो एसेट है जो पाकिस्तान को बाकी रख सकता है, सूबों को इकट्ठा रख सकता है। फेडरेशन की बका का ताल्लुक ही इमरान खान के साथ है। अगर वो नहीं होगा कोई बंदा भी जमा करने वाला नहीं है पाकिस्तान को। इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग जो है ना होश के नाखुन लें और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कभी भी खामोश ना रहें, बोलते रहें। अल्लाह भी चाहता है कि मज़लूम ज़ालिम के मुकाबले में फरियाद बुलंद करें। खुदा का पसंदीदा अमल ये है कि अल्लाह पसंद करता है इस अमल को। लिहाजा आप हम सब का हक है, ज़िम्मेदारी भी है, फरीज़ा भी है और इबादत भी है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ फरियाद बुलंद करें। अभी इंशाअल्लाह हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा और वहाँ फ्यूचर के हवाले से, आइंदा के हवाले से क्या हमने करना है इंशाअल्लाह वहाँ फैसला करेंगे। जाम है, शटर डाउन है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की आवाम किस तरह जवाब देती है फस्तायत का, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ का जो धरना जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कब तक जारी रहेगा? रात गए तक है या कुछ देर बाद ये कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, लाए अमल का ऐलान? देखिए, हम इसका फैसला साथ साथ करते रहते हैं। सोहेल अफरीदी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, दीगर हमारे ओहदेदारान हैं। हम देख रहे हैं, हमें अभी तक मस्बत इशारे मिले हैं और हो सकता है डॉक्टर साहिबान जो हैं आज खान साहब को ना देख सकें, जिनका हमने कहा है कल देख सकें। तो हम सूरत हाल की मुनासबत से फैसले करते रहेंगे। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आप भी रात को मौजूद थे, इससे पहले भी जब भी अडियाला की कॉल होती है आप मौजूद होते हैं। अभी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कॉल की गई है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे सामने मौजूद है, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं नज़र आया। रात के इवेंट में भी अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आए। क्या वजूहत है कि निजी मसरूफियात है? कोई रब्ता हुआ उनके साथ आपका? नहीं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, उसमें उन्होंने तमाम गुफ्तगू की है, जो सूरत हाल है उसका अहाता किया है। तो ठीक है, वो अपने तरीके से बात करते हैं, उनका अपना एक लाएअमल होता है, तो ठीक है। हम यहाँ सब मौजूद हैं, पार्टी की भरपूर नुमाइंदगियाँ हो रही है, पूरे पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगियाँ हो रही है, तो ये ठीक है।
देखिए, हमने चीज़ों को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं इस मुल्क में तामीर हो, तखरीब हरगिज़ ना हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहद रहें, मजबूत रहें, पुरअज़म रहें। तो हम अपने अज़म का यहाँ इजहार कर रहे हैं, अपने इत्तेहाद का यहाँ इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं हम ये निज़ाम पर मुसल्लत लोगों को कि आइन, कानून, इंसानियत, शराफत, इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर तर्क ना करो। खान साहब का ये बुनियादी हक़ था कि जूँ ही उन्हें अस्पताल ले जाने का इरादा हुआ, जूँ ही उनकी आँख में ये तकलीफ़ हुई, 3-4 दफ़ा हमें बताया गया है कि मुख्तलिफ डॉक्टरों ने उनको अडयाला जेल में देखा। ख़ानदान को इत्तला देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था ये अर्ज़ा है। महमूद खान अचकज़ई से भी कोई रब्ता हुआ है इस मामले पे, उनकी क्या राय है? जी, वो हमारे साथ हैं, हम उनकी रहनुमाई में काम करते हैं। बिल्कुल उनसे रोज़मर्रा की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे रब्ता है। आपके भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। हर इंसान के जो पाकिस्तान में बसता है, पाकिस्तान के आइन में उसके हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको प्रैक्टिस करना उसका हक़ है। और उनके रास्ते में रुकावट डालना और उनको ख़त्म करना, ये जुल्म है, सारा सर जुल्म है। हम पर जो इस वक्त निज़ाम हाकिम है वो ज़ालिम निज़ाम है। ज़ालिम हमेशा नाअहल होता है। खुदावंद मुताल की तरफ से जिसको इजाज़त नहीं है पर हुकूमत करे। पाकिस्तान का आइन में लिखा है हकमत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। ये इक़्तिदार अमानत है इनके पास। क्या ये अमानत जिन्होंने कब्ज़ा कर ली है, इनको हक़ है कि इस तरह के लोग हम पर हुकूमत करें? खुदा राज़ी है हमारे पर ये मुसल्लत हों? ये गासिब हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हर लिहाज से गैर इंसानी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है और ज़ालिमाना है। लिहाजा खान साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा आवाम और दुनिया में लोग, फ़कत पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में हर बाज़मीर और हुर्रियत पसंद इंसान जो चाहता है कि ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर एक बेहतरीन सिस्टम आए और एशिया तरक्की करे, वो खान साहब के बारे में उसके कंसर्न्स हैं, वो उनसे मोहब्बत करता है। लिहाजा खान साहब को जेल में बंद रखना, उनके हुकूक पामाल करना और इस तरह के इंतहाई डर्टी प्रैक्टिसेस करना, जिनकी कोई भी बाशरफ इंसान जिसके अंदर वक़ार हो, विजदान हो, इंसानियत हो, वो ये हरकत नहीं कर सकता। इसलिए काबिल मज़म्मत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी आप यहाँ बैठे रहें, ये दुनिया देख रही है कि हमारा अदालती निज़ाम कितना कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने वाला है ही नहीं है, ये इंसाफ देने वाला नहीं रहा है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद, आर्डर्स के बावजूद, मंगल को फैमिली बैठती है, जुमरात को चीफ साहब आते हैं, CM साहब आते हैं, लेकिन मुलाकात करने नहीं देते, हक पर डाका डालते हैं दिन दिहाड़े। ये वो लोग हैं जो दिन दिहाड़े बेशर्मी करते हैं, जुल्म करते हैं और उनको शर्म भी नहीं आता है। इसलिए मैं एक दुआ करता रहता हूँ, खुदा न करे किसी के मुखालिफ, उससे दुश्मनी करने वाले लोग कमीने और हकीर लोग हों। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है इंसान का। बाशरफ, बहादुर, शुजा मुखालिफ होना तो मुखालफत का मज़ा भी आता है। इस वक्त हमारा पाकिस्तान आप देख लें, KPK को देख लें, पाकिस्तान पूरे को देख ले, बलूचिस्तान को देख ले, पंजाब को देख ले, बच्चे औरतें जेलों में डाले हुए इन्होंने। हम सब की जिम्मेदारी है, आपका भी पिकार के साथ गला घोटा गया, हम सब की जिम्मेदारी है इस फस्तायत, जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ सदा बुलंद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवामी जदोजहद के ज़रिए ही हम निज़ाम को उठाएंगे और ये ढह जाएगा, इंशाअल्लाह नहीं चल सकेगा, ये अपने बोझ तले भी दब रहा है। तो आज जो भी यहाँ प्रैक्टिस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज़ादी के लिए है, हुर्रियत के लिए है, हुकूक के लिए है और इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में रखना पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान फेडरेशन से दुश्मनी है, पाकिस्तान पर हमला है। इसलिए इमरान खान ही वो एसेट है जो पाकिस्तान को बाकी रख सकता है, सूबों को इकट्ठा रख सकता है। फेडरेशन की बका का ताल्लुक ही इमरान खान के साथ है, अगर वो नहीं होगा कोई बंदा भी जमा करने वाला नहीं है पाकिस्तान को। इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग जो है ना होश के नाखून लें और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कभी भी खामोश ना रहें, बोलते रहें। अल्लाह भी चाहता है कि मज़लूम ज़ालिम के मुकाबले में फरियाद बुलंद करें। खुदा का पसंदीदा अमल ये है कि अल्लाह पसंद करता है इस अमल को। लिहाजा आप हम सब का हक़ है, ज़िम्मेदारी भी है, फरीज़ा भी है और इबादत भी है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ फरियाद बुलंद करें। अब इंशाअल्लाह हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा और वहाँ फ्यूचर के हवाले से, आइंदा के हवाले से क्या हमने करना है इंशाअल्लाह वहाँ फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और कल आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी ने
तकरीबन रात के 2:30 बजे के करीब जो है ये फ़ैसला किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो एपिसोड 2 जो है वो शुरू करनी है। तो आज उसी सिलसिले में उस धरने की एपिसोड 2 जारी उसारी है और यहाँ पर जो है वो आवाम भी बहरहाल मौजूद है और इसके साथ साथ वज़ीर आला KP और इसके अलावा शफ़ी जान हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सलमान अकरम राजा यहाँ पर मौजूद हैं। सेनेटर जो मिशाल यूसुफजई हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये इमारत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके बिल्कुल सामने जो है वो इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो अवाम भी बहरहाल मौजूद है और इसके साथ साथ जो है वो जो पार्टी अहदेदारान हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ी हज़रात हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो इस एहतजाज की कॉल दी गई है। अब ये जब पूछा जा रहा है कि कब तक बैठेंगे तो अभी तक के हवाले से कोई अपडेट तो बहरहाल नहीं दी जा रही, लेकिन ये कहा ही जा रहा है कि यहाँ पर हम बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब तक फ़ैसला नहीं आता। अब टाइम ख़त्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। कहा ही जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल जा चुके हैं और इसके अलावा रजिस्ट्रार जा चुके हैं और दीगर जो हम यहाँ पर लोग हैं वो इस वक्त जा चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि ये धरना कब तक जारी रहता है। इस वक्त की सूरत-ए-हाल यहाँ पर आपको अवाम नज़र आ रही होगी, कारकुनान हैं, इसके अलावा पार्टी अहदेदारान हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं तो यहाँ पर जो मिशाल यूसुफजई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी, ये इस वक्त सलमान अकरम राजा जो हैं वो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे जानते हैं वो इस वक्त क्या कहते हैं और ये कब तक धरना जो है वो जारी रखा जाएगा। उनको कि पाकिस्तानी कौम और उसके नुमाइंदे जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम एक पुरअमन लोग हैं लेकिन पुरअज़म लोग हैं। तो यहाँ जो आपको इज्तिमा नज़र आ रहा है, यहाँ सैकड़ों पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, MNA हज़रात, सेनेटर्स, प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ मौजूद हैं। कोयटा से हैं, सिंध से हैं, कराची, हर जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक इजहार है कि पाकिस्तान यक ज़ुबान होकर इस वक्त खान साहब की सेहत के हवाले से खड़ा है। पाकिस्तान फिक्रमंद है और पाकिस्तान उनकी सेहत के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का ये राब्ता जारी है और बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है इस चीज़ को, क्या समझते हैं कि उन बुनियादों के तहत ये मुलाकातें हो पाएंगी या फिर इस हवाले से चीफ जस्टिस को एक कोई आर्डर देना चाहिए था ताकि नहीं? देखें दो तरीके होते हैं ना। एक तो है कोई अदालती हुक्म हो, अदालती अहकामात तो आपने देखा कि क्या हुआ उनका नतीजा पहले, वो भी हम ज़रूर करते रहेंगे। वो जो एक रास्ता है उसको हमने छोड़ना नहीं है। हमने मनवाना है पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की अदालतों से हमने इंसाफ लेना है, अदालतों को मजबूर करना है इंसाफ देने पर। हम कोई बंदूक उठा के तो यहाँ नहीं खड़े ना, हम बात करने खड़े हैं। हम दलील की बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आइन और कानून की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो खालिस्तन इंसानी नौइयत के हैं, जो इंतज़ामी तरीके से भी हल हो सकते हैं। तो हम दोनों तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं। हमने बेशुमार पटिशनें की भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, यहाँ भी, अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी एक मुकदमा हमारा भेज दिया गया है। तो हम खड़े हैं। लेकिन जो मामला इंसानी सतह पे हो सकता है आला ओहदेदारान की मुदाखलत से, तो वो हो जाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि हमें कुछ पेशरफ्त मिलेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जहाँ पे आज आला सतह पे आप लोगों की इस वक्त बात चल रही है, अगर वहाँ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो फिर यहाँ पे ये धरना रात गया तक जारी रखेंगे, कॉल ऑफ किया जाएगा या फिर अगला कोई लाहे अमल देने जा रहे हैं? हम तसलसल से पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी मीटिंग्स पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं। हर हफ्ते मीटिंग होती है। आज भी हमने 6 बजे पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी एक मीटिंग रखी है। वहाँ पे हम तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और आगे देखेंगे क्या करना है।